Hi, I'm Parushma Sharma from iDigitalpreneur, and in this course, I will be teaching you all about spoken English. I will be solving all your doubts and giving you some tricks to be fluent in English. Let's start with the basic, and the basic is introduction. In the beginning, I gave my introduction. I was thinking कि कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूँ ये लेसन. इंट्रोडक्शन से बेटर क्या होगा? बिकॉज बिगनिंग में किसी से भी बात करते हुए, एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, किसी से भी बात करते हुए द फर्स्ट थिंग वी डू इज गिविंग आवर इंट्रोडक्शन, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, greetings. Whenever you meet someone or whenever you have to give an introduction, you always greet people, like I did in the beginning. I said, hello everyone, right? I'll tell you why I said hello. So, there are two forms. First is formal, second is informal. Formal 3 types के होते हैं. You can say good morning, good afternoon, good evening, right? अब इसको कब बोलेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए. Good morning is said till 12 noon. After 12 noon you say good afternoon, and in the evening as in 4 PM के बाद आप good evening बोलते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, राइट? इनफॉर्मली जब आप किसी से मिलते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड से मिल रहे हैं या किसी एक्वेंटेंस से, या फ्रेंड किसी और अपने फ्रेंड से मिलवा रहे हैं, और इट कैन बी अ पार्टी, इट कैन बी अ वेडिंग, एनीथिंग जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आप हेलो, हाय, हे यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको हेलो बोला, तो इज दिस एन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म? इट्स सेमी फॉर्मल, राइट? मैं इसको इनफॉर्मल भी नहीं कहूँगी बिकॉज वी आर नॉट रियली फ्रेंड्स और हम चैटी नहीं हो रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वी आर गेनिंग नॉलेज. तो ये एक फॉर्मल भी है बट नॉट वेरी मच फॉर्मल, राइट? तो मैंने हेलो यूज़ करा अपने इंट्रोडक्शन में. अब आजकल दीज डेज हेलो कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मल मीटिंग्स. आप हेलो भी बोलते हैं, इट्स एज रिस्पेक्टफुल एज एनी ऑफ दीज, राइट? सो यू कैन ऑल्सो से हेलो. You can say hi and hey. Some people also say yo, what's up? It's good, it's fine when you're talking to friends, but not for an introduction. You have to be a little polished when you speak in English, right? You need to look polished. तो ये हो गया हमारा greetings. After greetings, अब क्या आता है? After greetings, you tell your name, right? As I said, hello, my name is Parushma Sharma. You can say I'm Parushma, you can say I am Parushma, or when the person is on the telephone, मतलब जब आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं my name is Parushma, my name's Parushma. Contracted form. This is contracted form of my name is, right? My name is Parushma. अच्छा, आप ये नॉर्मली वैसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ टेलीफोन पे ही यूज़ करना है, बट इट साउंड्स एंड इट इज़ एक्चुअली राइट to tell that your name is Parushma and you're speaking on behalf of, या फिर you are speaking from, like that you start. ठीक है, पहले आप अपना नाम बोलेंगे because face to face नहीं है ना, you're talking about yourself, you have to tell this. और if you are in a large auditorium में अगर आप हैं या आप एक क्लासरूम में हैं जहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, you can also use this is Parushma. On phone sometimes I use this is Parushma, right? ये फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं. Any of these forms can be used anywhere. ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेग्रीगेट करा है so that you remember. ठीक है? This is Parushma. अब आपको क्या नहीं करना है? You will never use, I am repeating this, you will never use myself Parushma. You don't say that. That's grammatically incorrect. Or you will also not say my good name is Parushma. Okay, your name is really good, but your good name is Parushma. That's grammatically incorrect. Also, आप Mr, Miss, Mrs prefix नहीं करेंगे while speaking. Okay? Even while writing, you don't write that. But हाँ, बोलते हुए तो बिल्कुल भी Mr, Miss, Mrs का यूज़ नहीं करेंगे. Okay? Let's move on. Location. From where are you speaking? अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो, ठीक है? तो आप ये बताते हैं कि I am so and so person and I am speaking from, right? वैसे ही ये तो एक वो वाली लोकेशन हो गई कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी से बात कर रहे हैं, या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट?
ये प्रोफेशनल बात हो गई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आई एम पारुष्मा फ्रॉम आई डिजिटलप्रेन्योर, राइट? बट द लोकेशन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इज आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, ये भी तो कभी कभार हमें बताना पड़ता है। वो कैसे बताएंगे आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। ये दो तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, ठीक है? तो आप उनको बोलेंगे हे आई एम फ्रॉम दिल्ली, दे डोंट नो वेयर दिल्ली इज। मतलब सारे स्टेट्स के बारे में सबको नहीं पता होता, राइट? अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है, आप ये भी बोल सकते हैं हाय आई एम एन इंडियन। लाइक इफ अगर ये एक टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि आप कहाँ से हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम एन इंडियन। एंड देन अगर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, दे आस्क यू ओह यू आर एन इंडियन, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर फ्रॉम इंडिया आर यू, लाइक दैट। तो आप तब बता सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, लाइक दैट, ओके? ऑल्सो यू कैन, अगर आपको ये नहीं बोलना तो आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। या फिर अगर आप किसी से इस फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। अगर आप जनरली बताना चाहते हैं किसी को कि मैं यहीं पे बॉर्न हुआ और मैं यहीं पे ही मतलब मैं यहीं पे ही बड़ा हुआ हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। ना सपोज आप कहीं पे रहते थे पहले, अब आप जॉब पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर स्टेट में आ गए, तो आप किस तरीके से वो किसी को बताएंगे? यू कैन से आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर बट आई एम करंटली बेस्ड इन दिल्ली, दैट्स हाउ यू से, ठीक है? जैसे बहुत बार होता है कि दिल्ली से मुंबई जाते हैं लोग, तो दे कैन टेल अबाउट देयर ओरिजिनलिटी ऑल्सो कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, ओके? वी कैन से लाइक दैट। लेट्स मूव ऑन टू फैमिली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इनिशियल कॉन्वर्सेशन में, बट समटाइम्स येस यू हैव टू टॉक अबाउट योर फैमिली। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, कौन से फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं टू टेल एनीवन अबाउट योर फैमिली। सो यू कैन से आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 4, 5, 6, इट कैन बी एनीथिंग। सो आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5, दिस मीन्स कि मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं, राइट? 5 फैमिली मेंबर्स हैं। अब ज़्यादातर इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में उनको बताएं ओके एक दादी है, पापा मम्मा है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। यू डोंट हैव टू टेल ऑल ऑफ दैट, राइट? आप जनरली बस ये बोल सकते हैं। फिर अगर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है या कुछ थोड़ा और फैमिली के बारे में ही बात होने लगती है और आपको अपने सिबलिंग के बारे में बताना है, मे बी यू कैन। अच्छा, सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग इज बेसिकली एक पेरेंट के बच्चे। वो कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए एक ये फॉर्म यूज कर सकते हैं हम, सिबलिंग्स। वी डोंट हैव टू से ब्रदर सिस्टर, इसमें ये जेंडर न्यूट्रल होता है वर्ड, ओके? सो आई एम वन ऑफ 2 सिबलिंग्स, ठीक है? मैं 2 में से एक हूँ, मैं 2 में से एक हूँ। आई एम एन ओनली चाइल्ड। अगर आप सिर्फ ओनली हैं, अगर आप सिर्फ अकेले चाइल्ड हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड, ठीक है? अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले पॉइंट में मैं बता रही हूँ आपको, वी आर अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है? अगर आपको आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ नहीं बोलना, वी आर अ फैमिली ऑफ 4। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही खड़े हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग विद योर ब्रदर एंड देयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं वी आर अ फैमिली ऑफ 4। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादातर फैमिली के बारे में यूज़ होता है किसी गैदरिंग में, लाइक आप किसी वेडिंग पे गए हैं, देयर यू टॉक अबाउट योर फैमिली व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, राइट? तो यू कैन टॉक अबाउट योर फैमिली लाइक सो। क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, ये काफ़ी यूज़ होता है, चाहे आप अपने कॉलेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स में इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं, या फिर आप किसी न्यू जॉब में गए हैं, तो वहाँ पे अपने कलीग से यू आर गोइंग टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। सो यूल से इफ यूर इन स्कूल यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और अगर आपका न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम इन क्लास 8। अच्छा, यहाँ पर आप 8th नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभार हम ये सोचते हैं कि मैं 8th क्लास में हूँ, राइट? बट वाइल स्पीकिंग लाइक दिस, आई एम इन क्लास 8, 8th क्लास 8। जब पहले क्लास आएगा तो बाद में 8 लगाएंगे, 8th नहीं करेंगे। एंड जब बाद में क्लास आता है, यानी कि नंबर फर्स्ट आएगा, तब आप 8th कर देंगे, TH, राइट?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आई एम इन 8th grade, अब इसमें TH लगाया है। ग्रेड यूज कर सकते हैं आप क्लास की जगह, ग्रेड इज ऑल्सो अ वर्ड, मतलब क्लास भी यूज कर सकते हैं, बट देन दिस इज जस्ट एड ऑन टू योर वोकैबुलरी। आई एम अ ग्रेजुएट या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप समटाइम्स आपको कहीं आप किसी से मिले हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जनरली पूछ रहे हैं आपसे कि ओके व्हाट डू यू डू, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, इतना भी बोल के आप छोड़ सकते हैं। इफ इसके आगे आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट टेल देम कि आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। और यू कैन से आई एम PhD इन XYZ, इस तरीके से भी बोला जाता है कि XYZ here stands for your specialization. You can say I am an MBA in your specialization. ठीक है, तो I am PhD in English. You'll say it like this. ठीक है, I am pursuing XYZ. So sometimes आप किसी से जब बात करते हैं, बताना होता है कि क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग है, प्रोसेस चल रहा है, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं सपोज, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग मास कॉम, आई एम परसुइंग वट एवर यू आर। ठीक है, तो यू कैन टेल अबाउट योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन लाइक दिस। सो नाउ लेट्स सी, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, नाउ यू आर वर्किंग समवेयर और अब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, so you can skip the qualification part because obviously that's done and dusted. Now you can come on to directly your job part, okay, your career part. I work at XYZ company in the ABC department. That's how you can tell them. Or you can say I'm a lecturer at Kirorimal College in English department. So आप directly अपने, मतलब आप basically you will skip this part and you will directly talk about this part, okay? If you want to give general idea of your job, you can say, I work in sales. I work as a teacher. I work in advertising. I work as an editor. I am a lawyer. तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कंपनी एंड इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली अब आप एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यूर अ लॉयर दैट मीन्स यू हैव डन लॉ इन योर ग्रेजुएशन, राइट? तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इसलिए आई सेड, दैट इज व्हाई आई सेड दैट यू डोंट नीड टू मेंशन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इफ यू आर वर्किंग। हॉबीज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, बिकॉज ये ऐसा पार्ट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है, मतलब कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू टॉक अबाउट योर हॉबी, तो हो सकता है जो पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी भी सेम हॉबी हो, या ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी भी सेम हॉबी हो। ये बहुत ही इनफॉर्मल सेटअप में होता है ज़्यादातर। इन जॉब इंटरव्यूज ऑल्सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स। जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया है, तो उसमें इंट्रोडक्शन पे पूरा एक चैप्टर है, यू कैन चेक दैट आउट, यू कैन गो थ्रू इट एंड पॉलिश अप योर इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स, राइट? सो कमिंग बैक टू हॉबीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप, कोई आपको स्पोर्ट्स पसंद हो, या कोई बैंड पसंद हो, या कोई टीवी शो, कुछ भी पसंद हो आपको देखना करना, you can say I am a big fan of football or cricket or anything, whatever. I am a keen tennis player या guitarist. अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है अपने academics के अलावा, okay, like you're a guitarist, या आप एक सिंगर हो, या फिर आप as टेनिस प्लेयर हो, कोई भी आप गेम फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, so you can say I am a keen ... I really love listening to BTS. BTS is a band. Dancing. I really love dancing, etc. So on and so forth. इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से अपना फॉर्म कर सकते हैं, ये फ्रेजेस हैं बेसिकली। Okay, now let's come on to age. Nowadays, age is not a topic of discussion anymore. कोई भी अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताता है, एंड ऑल्सो कोई पूछता भी नहीं है। Age is just a number now, but still, if at all कहीं पे पूछा जाता है, you should know how to tell your age, right? Because it's interesting to tell, and बहुत interesting way में बताया जा सकता है। So let's look here. I am 25. Easy?
इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई योर एज तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली और लेट डेकेड. डेकेड, यू नो व्हाट इज डेकेड राइट? जैसे 20s, 30s, 40s डेकेड्स होते हैं ये. तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि मैं अर्ली डेकेड क्या हुआ. सपोज आई एम 23 ईयर ओल्ड, तो मैं बोलूँगी आई एम इन माई अर्ली 20s. ठीक है. अगर मैं 27 की हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम इन माई लेट 20s. एंड इफ आई एम 25 देन आई विल से आई एम इन माई मिड 20s. इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी के बारे में भी बात करना हो तो. Now, okay, let's look on to the example. I've already given you the example, but you can say he's in his early 40s and he looks really fit, right? तो introduction के बारे में हमने mostly सब कुछ cover कर लिया है, right? अब I hope कि next time जब आप interview दें तो आप इनमें से कुछ phrases का use करें so that you sound really good. ठीक है? तो हमने किन चीज़ों के बारे में बात करी है एक बार दोबारा देख लेते हैं. ग्रीटिंग्स याद रखना है हमेशा. योर नेम ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट, और कैसे अपना नाम बताना है और क्या नहीं करना है वो आप देख सकते हो दोबारा से. बिकॉज माई सेल्फ इज नॉट पारुष्मा. ओके, ये ऐसे नहीं बोलना है. लोकेशन, अपने कहाँ पे आप रहते हैं किस तरीके से वो बताना है, दैट वी डिस्कस्ड. देन योर फैमिली, हाउ टू टेल समवन अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर. यू डोंट हैव टू बोर एनीवन ऑन दैट. क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन के बारे में कैसे बताते हैं, ये फ्रेजेस यू कैन गो थ्रू देम. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो डेली लाइफ में यूज होता ही रहता है कि आपको किसी ना किसी को बताना होता है इफ यू आर स्टडिंग. तो एंड देन अपने ऑफिस के बारे में, अगर आपको अपने वर्क के बारे में बात करनी है तो कैसे करें. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना. तो अपना, अगर आपको नहीं पता है आपकी हॉबीज क्या है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको डेली में करना क्या पसंद है. बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो आप कभी भी किसी से कॉन्वर्सेशन करनी होती है तो इसकी वजह से यू कैन एक्चुअली इनहैंस द कॉन्वर्सेशन, राइट. उस कॉन्वर्सेशन को ए से जी तक लेके जाने के लिए ये हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जॉट डाउन योर हॉबीज एंड इनमें से किसी एक फ्रेज में लगा सकते हैं आप उनको एंड यू कैन स्पीक नाइसली. फिर एज के बारे में हम कैसे बताते हैं, दैट आर डिस्कस्ड. So this is all for introduction. I hope this was helpful. I'll meet you in the next chapter.